آج میں شام کی فلائٹ سے پاکستان چھوڑ آیا۔ ایک عجیب سا احساس ہے دل میں، جانے کیوں میں وہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ آخر کار مجھے اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، اور پھر بیرون ملک میں تو سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے مسائل وہاں کہاں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ شاید میں جس گھر میں اپنے دوست اکرم کے ساتھ کمرہ بانٹ رہا ہوں اس میں سناٹا بھی اس قدر ہے کہ دل ہولانے لگے، اور گھر میں کتنی رونق تھی۔ شاید میں شور شرابے کا عادی ہو گیا ہوں۔ گھر میں جب گڑیا شور مچاتی تھی تو میں کیسے جھنجلا جاتا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ اس کے شور کا انتظار کر رہا ہوں، اور سفر کر کے تھوڑا تھک بھی گیا ہوں۔ مجھے آرام کر لینا چاہیے، کل اس کمپنی کا چکر بھی لگانا ہے جہاں پر نوکری کرنی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کا رزق کس طرح پھیلایا ہوا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے۔ مالک کا احسان ہے کہ نوکری پکی ہے، لوگ بھی بھلے ہیں، لیکن کتنی اجنبیت ہوتی ہے نئے شہروں میں۔ نہ لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں نہ زبان۔ گھر آ کر بھی میں ایسے ہی پڑا رہتا ہوں۔ اکرم نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے تو ایک طرح سے میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ گھر یاد آتا ہے، یہاں سے بار بار فون بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خط کا جواب آنے میں بھی دنوں لگ جاتے ہیں۔ چھوٹو اماں کو بہت تنگ کرتا ہوگا، خط پوسٹ کرنے میں دن لگا دیتا ہوگا۔ اماں بہت یاد کرتی ہوں گی، روتی بھی ہوں گی۔ کتنی محنت کی ہے انہوں نے اور ابا نے مجھے بڑا کرنے میں۔ اب میری باری ہے کہ میں انہیں کچھ کر کے دکھاؤں۔ انہوں نے ہمارے لیے زندگی لگا دی، اب میں بھی کچھ سال محنت کر کے ان کے سارے ادھورے خواب پورے کر دوں گا۔ ہفتے کو مجھے اچانک شدید بخار ہو گیا۔ اکرم کو ڈیوٹی سے آ کے مجھے سوتا دیکھ کر تشویش ہوئی۔ ہاتھ لگایا تو میرا ماتھا تپ رہا تھا۔ یہاں میڈیکل بہت مہنگا ہے۔ اکرم اپنے ساتھ پاکستان سے کچھ دوائیں لے کر آیا تھا، پتہ نہیں چھپا کر لایا تھا یا نقلی ڈاکٹری نسخہ لکھوا کر۔ 3 وقت وہ کھانے سے بخار تو اترتا رہا، مگر شدید بخار کے اترنے کی نقاہت سے میری حالت بری ہو گئی۔ رات کو جب میں دودھ ڈبل روٹی کھا کے سویا تو اماں بہت یاد آئی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گھر میں ہوتا تو اماں کبھی اس طرح نہ پڑنے دیتی۔ دلیا، یخنی اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے میں جٹ جاتی۔ رات بھر سرہانے بیٹھی رہتی۔ خیر، ابھی تو اماں کا یہاں آنا تقریباً ناممکن ہے۔ سوچا نہیں تھا کہ پردیس میں رہنے والے اتنے مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ رمضان شروع ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کیسے گزاروں گا اکیلے۔ سحری میں کیسے اٹھوں گا؟ اماں کے ہاتھ کے پراٹھے بہت یاد آئیں گے۔ کراچی میں تو کیا رونق ہوتی تھی سحر اور افطار میں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے خود کو پنجرے میں بند کر لیا ہے۔ اچھی نوکری، اچھی اور آسودہ زندگی کا خواب لے کر پردیس آیا تھا، لیکن تب یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی تو گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس ہنستے مسکراتے چہرے ہی آپ کی زندگی کی اساس ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ کہ سونے کے نوالوں سے پیٹ بھرے رہتے ہوں اور دل اداس رہے۔ کاش میں وہیں رہ کر اتنے پیسے کما لیتا کہ گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ آج میں بہت رویا۔ عید کے دن بھی گھر والوں سے بات نہیں ہو سکی۔ اماں کا خط اب تک نہیں پہنچا ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آنسو صفحے پر گر رہے ہیں۔ اس مہینے میں کچھ بھی کر کے اماں کو ٹیلی فون لگوانے کے لیے الگ سے پیسے بھیجوں گا۔ آج اماں کا خط ملا، بہت پریشان ہے۔ چھوٹے نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، سارا دن باہر گھومتا رہتا ہے۔ ابا کمزور ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بھاگ نہیں سکتے۔ اتنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے کہ بس اماں کو میری ضرورت ہوگی۔ میں ہوتا تو کان کھینچ لیتا اس کے، باہر بھی نکل کر دیکھتا کہ کہاں گھومتا پھرتا ہے۔ اس وقت تو سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ اللہ اس کی حفاظت کرے، کہیں وہ کسی بری صحبت میں نہ پڑ جائے۔ آج تو خوشی سے میرا بس نہیں چل رہا، کیا کر دوں۔ ابھی تک لکھتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ گھر میں ٹیلی فون لگ گیا ہے۔ کتنے دن لگے اس سب میں۔ پھر اماں کا خط آیا، اس میں نمبر بھیجا تھا۔ آج میں نے 6 مہینے بعد اماں اور گڑیا کی آواز سنی۔ ایسا لگا جیسے وہ لوگ میرے سامنے ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب خط کے انتظار میں مرنا تو نہیں پڑے گا۔ جب بھی دل چاہے گا جا کر بات کر لوں گا۔ اماں کا لمبا چوڑا خط ملا، گھر کی ضرورتوں کی لمبی فہرست۔ گڑیا نے بھی اس بار
बहुत सी फरमाइशें कर डाली। अचानक ही बहुत सा बोझ कांधों पर पड़ गया है। सोचा था इस बार थोड़े पैसे बचाकर कपड़े लूंगा, वैसे भी यहाँ जाड़ा शुरू होने वाला है। मजदूर आदमी हूं तो शुक्र है दफ्तर में वर्दी ही चलती है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ कपड़े चाहिए थे। खैर, अकरम ने बताया है कि पाकिस्तान की तरह यहाँ भी लुंडा बाजार होते हैं जहां से कम कीमत में रईसों की उतरन मिल जाती है। इस बार मैं और पैसे बचाकर अम्मा और गुड़िया को भेज दूंगा। आज जब अकरम ने मुझे पैसे भेजते हुए देखा तो बड़ी अजीब बात कही। मुझे उसकी बात शुरू में तो बुरी लगी थी, लेकिन मैंने उसे कुछ कहा नहीं। अब सोच रहा हूं कि उसकी बात में किस हद तक गहराई है। उसने कहा, अगर मैं यूं ही जरूरतें मार मार के पैसे भेजता रहूंगा तो वहां इसी रफ्तार से जरूरतें बढ़ती रहेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे हैरत से देखा तो वो बोला कि भाई, तुम कौन सा यहाँ पैसों में खेलते हो, लेकिन जिस तरह तुम घर वालों को भेजते हो पाकिस्तान में सबको यही लगता होगा। मैंने उससे कुछ कहा तो नहीं। मैं यहाँ इसीलिए तो आया था कि उन्हें पैसा कमा के दूं। मैं रख कर क्या करूंगा? खैर, हर शख्स की अपनी सोच है। अकरम की सोच पर मुझे बहुत ताज्जुब है। इस मुल्क के सारे मौसम देख लिए हैं। 1 साल होने वाला है यहाँ रहते हुए। कितना बदल गया हूं 1 साल में। अम्मा तो शायद अब मुझे पहचाने भी नहीं। मैं अब 2 शिफ्टों में काम करता हूं। बीच में थोड़ा वक्त मिलता है, लेकिन दिन का ज्यादातर हिस्सा मजदूरी में ही निकल जाता है। मैनेजर ने बोला है कि अगर तुम्हारी कारकर्दगी ऐसी ही अच्छी रही तो 5 साल के बजाय 3 साल के बाद एक छुट्टी दिलवा दूंगा, फिर मैं शायद पाकिस्तान जा सकूं। अब तो कई कई दिन तक फोन करने की फुर्सत नहीं मिलती। जिस वक्त मैं फारिग होता हूं उस वक्त घर में सब सो चुके होते हैं। परसों अम्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा, अब्बा ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि दिल का मुकम्मल मुआयना करवाएं। अम्मा और छोटू उनका ख्याल रख रहे हैं। अब्बा को बिस्तर पर देखकर छोटू भी संजीदा हो गया है और अम्मा की बात भी सुनने लगा है। बस अब वो ऐसा ही रहे और अब्बा की सेहत जल्द ठीक हो जाए। 2 दिन से मैं होश में नहीं था। मुझे लग रहा था पूरी दुनिया तहोबाला होकर रह गई है। परसों अम्मा का खत मिला कि अब्बा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। भागा भागा एसटीडी तक पहुंचा और फोन किया तो पता चला कि अब्बा नहीं रहे। 1 मिनट को लगा मेरी भी रूह परवास कर गई है, मगर मैं अभी इसी दोज़ख में जलने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया हूं कि उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं था। अब्बा की लहर की मिट्टी भी नहीं छू सका। मैं बिखर गया हूं। मेरे भेजे हुए नोट मेरी कमी पूरी नहीं कर पा रहे। अब्बा चले गए और मुझे हमेशा के लिए इस अधूरेपन के साथ छोड़ गए। यहां अब दिल नहीं लगता। घर पर ज्यादा फोन करता हूं, अम्मा कम बोलती हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वहीं चला जाऊं। हर चीज से दिल उचाट सा होने लगा है। अम्मा की इद्दत खत्म हो गई। आज मैंने अम्मा से कहा कि मैं वापस आ जाऊं तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। कहने लगी मैं पागल हो गया हूं, घर में अभी बहुत मसले हैं। छोटू यूनिवर्सिटी जाता है, गुड़िया की शादी भी करनी है, घर की ऊपरी मंजिल भी बनानी है। मैं शायद इतना खुद गर्ज नहीं हो सकता कि अम्मा को इतनी परेशानियों के साथ एक पैसों का मसला भी दे दूं। यहीं रह लूंगा कुछ और अरसे। पता नहीं अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा है। आज अम्मा का बड़ा तवील खत मिला। सलीम मामू ने अपने बेटे के लिए गुड़िया का रिश्ता मांग लिया है। नौमान मेरा ही हम उम्र है। सुनकर सुकून का एहसास हुआ कि गुड़िया के लिए अच्छा घर और अच्छा बर मिल गया है। लेकिन अम्मा ने जहेज में देने की चीजों का बड़ी तशवीश से जिक्र किया है। कोशिश करूंगा गुड़िया की शादी में किसी चीज की कमी ना हो। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। लगता है जिंदगी इसी तरह घर के बारे में डायरी लिखते लिखते गुजर जाएगी। जब से अम्मा ने गुड़िया के रिश्ते का बताया है, 1-1 रुपया जोड़ रहा हूं। जब से परदेस आया हूं जाने कितनी बार रोया हूं, मगर आज जो मैंने महसूस किया उसके लिए दुनिया में शायद कोई लफ्ज नहीं बने। सलीम मामू चाहते हैं इस जून में गुड़िया की रुखसती कर लें। आज अम्मा को फोन किया तो उन्होंने पूछा कि मैं सब तैयारियों के लिए इतनी रकम भेज सकता हूं या नहीं। मैंने अम्मा से कहा मुझे जून में छुट्टी नहीं मिल सकती, तो अम्मा ने कह दिया कि कोई बात नहीं, बस शादी में कोई कमी ना हो। कह रही थी मामू को बहुत उम्मीद है कि तू अपनी बहन की शादी बहुत शानदार करेगा। मैंने फिर एहसास दिलाया कि मेरे बगैर वो शादी कैसे कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसा हो
तो सब हो जाता है, और बाकी बाहर की भाग दौड़ तो छोटू मदद कर ही देगा। मुझे मालूम नहीं था कि पैसे में इतनी ताकत है कि वो एक भाई का नेमुल बदल भी बन सकता है। गुड़िया की शादी में मेरी हैसियत सिर्फ एक बैंक की सी थी। आज गुड़िया रुखसत होगी, यकीनन कोई कमी नहीं रही होगी। 2-2.5 साल में जोड़ी गई सब रकम मैंने अम्मा को भेज दी थी। गुड़िया के सब अरमान पूरे हो गए होंगे। आंखें बार बार भीग रही हैं, दिल डूब डूब कर उभर रहा है। इकलौती बहन को दुल्हन बनते नहीं देख सका। बहुत प्यार करता हूं उससे। घर में होता था तो कितना लड़ता था उससे, लेकिन उसके किसी काम को कभी मना नहीं किया। उसकी नाराजगी मैं कभी तसव्वुर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब किसे पता था कि मैं गुड़िया की शादी तक में शरीक नहीं हो पाऊंगा। काश वहां होता, सबके चेहरों की खुशी देख पाता, उस खुशी का हिस्सा बन पाता। मेरे नसीब में ये खुशी क्यों नहीं लिखी थी। बहुत अरसे बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ। गुड़िया का बेटा हुआ है। खुशी से पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। छोटी सी गुड़िया मेरी नजरों में घूम गई। छोटू ने अपना काम शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई। अम्मा ने अच्छी बचत की। सारे फराइज कितने अच्छे से पूरे हो गए। अल्लाह हमारे घर को ऐसे ही शादो आबाद रखे। अम्मा ने छोटू का रिश्ता पक्का कर दिया। कह रही थी जिद पकड़कर बैठ गया था। 3 दिन तक कुछ खाया पिया भी नहीं। उसको अपने दोस्त की बहन पसंद आ गई थी। अम्मा की आवाज में अजीब सी शर्मिंदगी थी। खैर, अच्छा किया, उन्होंने शादी तो करनी ही थी उसकी। अच्छा हुआ कि उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आज अम्मा को फोन किया। अम्मा ने बताया कल छोटे का वलीमा हो गया। मैंने मुबारकबाद देकर फोन रख दिया। अम्मा बहुत रो रही थी। कह रही थी कि नौमान और मामू की मुश्तरका दुकान में आग लग गई है। फाकों की नौबत आ गई है। गुड़िया अपने चंद माह के बेटे के साथ घर आ गई है। गुड़िया ने भी बात की। उसकी भी हिचकियां बंध गई। कह रही थी नौमान सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पागलों जैसी हालत हो गई है। उसने मुझसे कहा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैंने अभी उसके बच्चे की पैदाइश पर खुशी खुशी में अपने जमाशुदा पैसों में से कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिए थे। मैं अपने मालिक से बात करूंगा, काश कोई वसीला बन जाए। मेरी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुझे कंपनी से नकद इनाम मिला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। शायद ये पैसे गुड़िया के लिए ही आए हैं, लेकिन ये भी इतने नहीं है। मैंने मालिक को सब सूरत हाल बताई तो उसने कहा कि वो कंपनी के अकाउंट से एडवांस में थोड़ी तनख्वाह दिलवा देगा, लेकिन उसके लिए मुझे मजीद 5 साल का अहदनामा साइन करना होगा, जिसके तहत मैं मुतवातिर 5 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाऊंगा। पाकिस्तान में वैसे भी मुझसे ज्यादा इन नोटों की जरूरत है। मैंने मुआहदे के लिए हामी भर ली। मेरा पासपोर्ट मजीद 5 साल कंपनी के पास रहेगा। मैंने वापसी पर ही पैसे पाकिस्तान रवाना कर दिए। आज अम्मा को फोन करके पूछा। कह रही थी कि गुड़िया घर चली गई और मुझे बहुत दुआएं दे रही थी। मैं दुआओं का क्या करूंगा, वो खुश है, बस यही काफी है। जिस वक्त जहाज कराची में उतरा, फजर की अजान हो रही थी। 8 साल पहले परदेस जाकर जो अजनबियत सी महसूस हुई थी, वो बेरुखी आज कराची की फिजा में महसूस हो रही थी। सब बदल सा गया है। घर पर उतरा हूं तो घर को पहचान नहीं सका। यकीन नहीं आया कि ये जो शक्ल इस घर ने बदली है, ये मेरे दिन रात की मेहनत है। डोर बेल के पास रुका तो ठटक कर रह गया। नाम की तख्ती पर जली हुरूफ में छोटू ने अपना नाम लिखवाया हुआ था। दरवाजा खुला तो हैरत का एक और अजीब जहां था। उन सब के लिए ये एक सरप्राइज था। अम्मा पहले तो मुझसे लिपटकर बहुत रोई, लेकिन मैं अपने आंसू खुश्क कराया था। मैं तन्हाई में इतना रो लिया था कि रोने के लिए ना आंसू बचे थे ना दुख। आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ मेरे लिए अब वहां और भी ज्यादा कुछ नहीं बचा था। सबकी अपनी दुनिया थी जिसमें मेरी कोई जगह नहीं थी, और मैं परदेस वापस आ गया।